I Got can it. start. Thank you. जी, thank you. Ji, Assalamu alaikum to everyone. So I'm going to start the lesson now. We have enough members who joined. So today's lesson is on Al-Kitab. Al-Kitab, कुरान को फ़र्क attribute से अल्लाह ताला ने कुरान में इस्तेमाल किया है. Al-Quran means the reading. The reading is not just the reading that we do, the reading is our observation also. Just like scientifically when we study, so we are taking readings. So in our life also, we are taking readings of different situations, and then we make some judgment about those situations and we learn lessons from those situations. So that is a reading that we do. Al-Kitab is the written text. The text of the book is Al-Kitab. Last time also I mentioned one ayat, Surah 85 ki, that Quran is not just a written text. It is not just a prescription. It is actually embedded in our conscience. So hamari damag mein, we are born with that conscience, and that message is in fact the Quran message. And when it is written in text, it is Al-Kitab. And when we read it, we actually activate that conscience that is within us. So हमारे mind, हमारे brain के अंदर, just like a chip, जिस तरह कंप्यूटर काम करता है, हमारा एक्चुअली कंप्यूटर हमारे ब्रेन के ऊपर ही उन्होंने फॉर्मुलेट किया है, उसको रेप्लिकेट किया है. तो जिस तरह कंप्यूटर के अंदर चिप होती है, मेमोरी चिप होती है, और एक सबकॉन्शियस कहते हैं हमारे अंदर एक चिप होती है जो हर इंसान लेकर पैदा होता है कुरान की not understanding, but it is there within us, and it's our job to discover it. And during our lifetime we learn lessons. हमारा एक conscience होता है, हमारी नफ्स जो होती है वो हमें बताती रहती है what is right and what is wrong. And because there is a lot of wrong that is conveniently done in the world, हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता चलता. तो उन चीज़ों को समझने के लिए जो गलत हो रही होती हैं दुनिया में, और हम समझ रहे होते हैं कि they are okay, but कुरान के अल्लाह के लॉ से they are not okay. So we have to go back to Quran and read and find out for ourselves what is actually right and what is wrong. And then there is another attribute of Quran, which is Al-Furqan. Al-Furqan जो फर्क करता है right or wrong में, the criterion between right and wrong. So that is why it is also called Al-Furqan. At some places it is called Al-Huda, the one that gives guidance. So Hadayat भी कुरान से आती है. And इसमें और भी आपको मैं attributes बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपके पुराने जो दूसरे concepts हैं वो थोड़े से clear हो जाएं. But we'll start with the ayat now. Surah Baqarah, Surah number 2 and ayat number 2 and 3. Surah Baqarah, Surah number 2 and ayat number 2 and 3. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alif Lam Mim. Zalikal Kitabu. ये है वो किताब. This is the book. La Raiba, जिसमें कोई doubt नहीं है. फी है इसमें. हुदल लिल मुत्तकीन. It is guidance for those who take guard. तो जो लोग गार्ड लेना चाहते हैं, जो अपना सेल्फ रिस्ट्रेन बनाना चाहते हैं, and those who seek protection, they are the ones who are going to receive guidance from this book. So there is no doubt in this book. This is what Allah says. This is the first ayat of Surah Baqarah, और अल्लाह इसमें क्लियर कर देते हैं कि इसमें डाउट नहीं है. तो अगर कहीं डाउट आ रहा है तो वो हमारी सोच में है. तो सबसे पहले हमें इस तरह से ये चीज़ क्लियर करनी है कि हमारे दिमाग में जो चीज़ें आ रही होती हैं डाउट के बारे में हवाले से, वो हमारी अपनी सोच है, विच इज़ रॉन्ग. कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकती, कुरान में कोई डाउट नहीं हो सकता. So if we see two ayat जो हमें नहीं समझ में आ रही हैं कि ये भी कहा गया और ये भी कहा गया, so probably we haven't figured out the right understanding of either. So we have to check ourselves. Allazina yu'minuna bil ghaibi. वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब के ऊपर, अनसीन के ऊपर. तो जो लोग ईमान लाते हैं ना, वो अनसीन पर ईमान लाते हैं, क्योंकि जब आपको चीज़ सामने नजर आ गई
तो फिर तो उस पे ईमान, उस पे you're not really having faith in that. So when you believe and you have faith in something, it is on something which you're not seeing as yet. तो जब सामने आपको रिजल्ट आ जाएगा, जिस तरह आप बच्चे को कहते हैं, सिखाते हैं, तो आप कहते हैं कि यू नो डोंट डू दिस, यू गोइंग टू फॉल और यू गोइंग टू गेट हर्ट. सो इफ द चाइल्ड बिलीव्स and then stays away from that particular act, then obviously he or she is going to benefit. लेकिन अगर वो नहीं बात सुनता तो फिर उसको तकलीफ होगी, फिर उसको जब चोट लगेगी तो तब तो उसने देख लिया उसको. तो आपको तकलीफ से बचाने के लिए सारे अहकाम अल्लाह भेजते हैं, so that you keep yourself protected and guided and stay away from the harm. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ and establish salat. कायम कीजिए salat. Establish a way of connecting with Allah on a regular basis and communicating with Him. So you keep on receiving the guidance, you keep on feeling His presence, and you keep the God consciousness going in your daily routine. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, और जो हम उनको रिस्क देते हैं उसमें से वो खर्च करते हैं. ये भी एक बहुत क्रिटिकल एक एलिमेंट है कि इन तीनों चीज़ों को अल्लाह ताला ने इस आयत में समाप्त कर दिया है, क्योंकि हदायत पे रहने के लिए मुत्तकी लोगों के लिए ज़रूरी है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि पहले तो आप ईमान लाएं अनसीन पर, जो अभी हुआ नहीं है आपके सामने, बट आपको पता है कि अल्लाह ने कहा है तो ऐसे होगा, और आप अपना रेगुलर कनेक्शन अल्लाह के साथ इस्टेब्लिश कीजिए. एंड उसके बाद आपको खर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि जो अल्लाह आपको देते हैं उसमें पूरा आपके लिए नहीं होता, जो एक्सेस अमाउंट होता है उसमें दूसरों का हक होता है. सो द एक्ट ऑफ गिविंग इन इटसेल्फ कंप्लीट्स योर गाइडेंस. तो आपकी जो आप एफर्ट कर रहे हैं अपनी सारी, वो एंड में गिविंग पे जाके आती है कि जो आपको मिला है वो आपने आगे देना है दूसरों को. इसी तरह पूरा निज़ाम चलता है. We become conduits. We are not to hold on any nemat of Allah just for ourselves. Anything that is extra given to us, उसका एक शेयर हमारी तरफ से जाना ही जाना है. और ये खर्च जो आपने करना है वो सिर्फ पैसे की सूरत में नहीं होता, नॉलेज की सूरत में होता है. एनी एबिलिटी दैट अल्लाह हैज गिवन यू, any special position that Allah has given you, you have to share it amongst others, because that has been gifted to you so that you pass it on. जब हम कुरान में पढ़ते हैं ना कि अल्लाह has made us खलीफा on the earth, तो खलीफा का मतलब ये होता है that you are delegated with the authority so that you pass on the things that Allah has gifted you with. So ये आप पे जमीन के ऊपर ये काम करने होते हैं, ये कोई फेवर नहीं हो रही होती किसी के लिए. सो दिस इज ड्यू अपॉन अस टू the gratitude that we offer to Allah is actually that by giving we are confirming that we are grateful to him कि अल्लाह ने हमें ये चीजें अता की हैं जिस फॉर्म में भी अता की हैं. नेक्स्ट आयत देखिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 285. सूरह बकरा आयत 285. आमना रसूलो, और रसूल ईमान लेकर आए, बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही, उस पर जो नाजिल किया गया उनके रब की तरफ से, वल मुमिनून, और ईमान वाले लोग भी. सो द मैसेंजर एंड दोज हु बिलीव इन व्हाट इज रिवील्ड टू देम फ्रॉम देयर रब, फ्रॉम देयर लॉर्ड. कुल्लुम आमना बिल्लाहि, और ये सब ईमान लाते हैं अल्लाह पर, व मलाइकातिही, और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर. तो इन सब चीज़ों पर हमने ईमान लाना है, जैसे रसूल ईमान लाते हैं और ईमान वाले भी. ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूलिही, नहीं हम फर्क करते किसी एक रसूल में भी इनमें से. तो हमें सब रसूलों के ऊपर ईमान लाना है. अल्लाह की किताब में जितने अंबिया का जिक्र है, जितने मैसेंजर्स का जिक्र है, सब पर ईमान लाने का मतलब ये है कि उन सब की जो गाइडेंस है, उन सब की आयतों को हमने
आयतों को जनरली देते हैं, जो कि हम बार बार सुनते भी हैं और रिपीट भी करते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ। Follow every prophet, every messenger's guidance that is given in the book. वकालू, और हमें कहना है समयना व अताना। समयना व अताना मीन्स वी हियर एंड वी ओबे। तो जो हम सुन लेते हैं, वी हैव टू कमिट टू दैट कि वी हैव हर्ड इट, नाउ वी आर गोइंग टू ओबे, वी आर गोइंग टू फॉलो इट। गुफराना का रब्बना व इलैकल मसीर। हमारे रब, हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए। हमें हमारी मग़फ़िरत एक्चुअली कम्स फ्रॉम द वर्ड गफ़र, विच मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग। किसी चीज़ के अगर आपके कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उससे हमें बचा लीजिए। जब तक कि हम ये सीख रहे हैं काम, वी आर लर्निंग व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी आर स्ट्राइविंग। So please keep us in your protection, and आप ही की तरफ हम सबका एंड है। Our final, the end of all journeys is towards Allah. So ये हम ईमान लाते हैं किताब की हर चीज के ऊपर, तमाम आयतों के ऊपर। अब किताब में अल्लाह ताला हमें देते हैं दो तरह की आयतें। There is मुहकम आयात and मुतशाबे आयात। सूरह 3 आयत नंबर 7। Surah 3, ayat number 7. वल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताबा, वही है ज़ात अल्लाह की जिसने नाजिल किया आपके ऊपर अल किताब को, द बुक। मिन्हु आयातुम मुहकमात, इसमें आयतें हैं मुहकमात। मुहकमात मीन्स हुक्म वाली आयतें, जो मैंने आपसे कहा था एक कमांडिंग, गवर्निंग आयतें। तो हुक्म अहकामात देने वाली आयतें हैं इसमें। हुन्ना उम्मुल किताब, दीज, ये लाइक द कोर ऑफ द बुक है, द गवर्निंग आयात दैट वी रीड इन कुरान। व उखरु मुतशाबिहात, और जो दूसरी हैं वो मुतशाबिहात हैं। मुतशाबे शबाहत से निकला है, ऐसी आयतें जो कि शबाहत रखती हैं आपकी ज़िंदगी के सिचुएशंस के साथ, मीनिंग दे आर रिजेंबलिंग टू योर सिचुएशंस ऑफ लाइफ, एंड यू हैव टू रिलेट टू देम एंड अंडरस्टैंड देम फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि इसमें आपके लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम, फिर वो लोग जिनके दिलों में ज़ैग़ुन, कोई डिविएशन होती है जिनके दिलों में। And again, we are not talking about other people, we are talking about ourselves. तो जब हमारे अंदर, जब भी हमें फील हो कि कोई डिविएशन होती है, तो उसका अल्लाह ताला आपको बताते हैं कि हम उसको हमने ऑब्जर्व कैसे करना है। That we have to check ourselves, that our deviation in our hearts. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, they follow what is in the resembling ayat, minhu ibtigha al-fitnati, and seeking in it some sort of captivation. कोई confusion आप उसमें निकाल लेते हैं। Lot of people are attracted to the stories, और उस stories में वो कोई ना कोई confusion create कर लेते हैं, वो आपने नहीं करनी है। So that will be a sign of your heart not being at a very sound state, at peace. So there is some you're getting distracted. So check yourself on that. वब्तिगाअ तावीलिही, and they seek the interpretation. तो उनके पीछे मत जाइए, उन आयतों के पीछे। आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप गवर्निंग जो आयत हैं, जो क्लियर आपको कमांडमेंट्स दी जा रही है, उनको फॉलो कीजिए। जब आप उनको फॉलो करेंगे, फिर आपके पास कोई सिचुएशन अगर आती है, तो उस सिचुएशन को समझने के लिए आप इन रिजेंबलिंग मुतशाबे आयात को जब पढ़ेंगे, तो आपको उनके अंदर गाइडेंस रिसीव होगी। So a lot of people, what they do is they get carried away in just the stories and storytelling, और वो stories के अंदर गुम जाते हैं, फिर उनको वो guidance नहीं मिलती जो कि actually is meant for them. वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, और नहीं इल्म किसी को उनकी इंटरप्रिटेशन का except for Allah. वरासिखूना फिल इल्म, और जो नॉलेज में लोग रासिख हैं, जो पुख्ता हैं, those who are firm in the knowledge,
यकूलूना आमन्ना बिही, दे से वी बिलीव इन इट, कुल्लुन मिन इंदी रब्बिना, हर चीज हमारे रब की तरफ से है, वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं ये तस्करा बट ओनली फॉर पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उलुल अलबाब जो लुब्बे लुबाब समझते हैं किसी बात का, ऐसे लोग जो वो फाइंड द द एसेंस, जो कि क्रक्स, जो किसी चीज का जो मेन इंटेंशन है उसको समझते हैं, पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। So they say everything is from Allah and we believe in it. And that's how we are supposed to also read from Quran. कि जो चीज clearly समझ में आ रही है उस पर अमल कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। और जब आपकी कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में, ऐसी सिचुएशन होगी जो कि कोई स्टोरी आपको रिलेट करके समझा रही होगी कुरान से, तो फिर उसमें से गाइडेंस लीजिए एंड देन फॉलो दैट गाइडेंस दैट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। सूरा जी, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौला, वो लोग नेट इज जी, आई रिपीट अगेन, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौला, वो लोग जो सुनते हैं कॉल को, बात को सुनते हैं, फयत्तबिऊना ahsana, फिर फॉलो करते हैं जो उसमें से दे रिसीव द बेस्ट मीनिंग ऑफ इट। आप अब हर इंसान जो बात सुन रहा होता है, आयत सुन रहा होता है, उसकी समझ उसके मुताबिक होती है, द वे दे थिंक एंड द वे देयर सिचुएशन इज। सो जो आप सुनते हैं एंड यू वट एवर बेस्ट यू मेक ऑफ इट, यू फॉलो दैट, दैट इज द गाइडेंस, सिंपल। अब इसमें आप, यस यू कैन एक्सचेंज नोट्स विद अदर्स कि किसी को कैसे समझ में आए, एंड यू मे फाइंड लिटिल मोर डेप्थ और लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन बेटर, लेकिन जो आपको समझ में आ रहा है उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि यू आर अकाउंटेबल टू ओनली योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उलाइका लजीना हदाहुमुल्लाहु, ये वो लोग हैं जो गाइडेंस पर हैं उनके अल्लाह की तरफ से, व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और ये लोग हैं जो कि उलुल अलबाब हैं, who take the best understanding and follow it. That is what how we are supposed to read from Quran. नेक्स्ट आयत देख लीजिए, आयत नंबर 23 ऑफ द सेम सूरा, 39 सूरा, आयत नंबर 23। अल्लाहु नज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह है कि नाजिल करते हैं द बेस्ट ऑफ अहदीस, द बेस्ट ऑफ इवेंट्स एंड सिचुएशंस, किताबम मुतशाबिहम मिसाली, जो लिखी गई हैं मुतशाबिहन, अगेन resembling to your situations, misali, as an example for you. So these situations, the stories that are in Quran, are resembling of our situations in life. So ये, और अल्लाह आप पे नाजिल करते हैं the best meaning of these when you are in a situation and you turn to Allah for guidance. तफ़शाइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना, तफ़शाइरु इस शिवर कर जाती है इनसे स्किन, जिल्द, स्किन ऑफ दोज पीपल यख्शौना रब्बाहुम, जिन्हें खौफ है उनके रब का। तो जब ऐसी कोई रेवलेशन आती है, इट्स लाइक गूज बम्प्स, जिससे आपको एकदम से फील होता है, आपकी स्किन जो है वो शिवर कर जाती है उसके साथ, बिकॉज यू रियलाइज दैट दिस इज द ट्रूथ फ्रॉम अल्लाह ताला। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम, फिर सॉफन हो जाती है उनकी स्किन्स, व कुलूबुहुम, और उनके दिल, इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के साथ। So with the remembrance of Allah, you understand that this was a message meant for you from Allah Ta'ala. So you humble yourself. ज़ालिका हुदल्लाही, ये हदायत है अल्लाह की, याती बिही मयशा, जिससे वो गाइडेंस देते हैं जिसे चाहते हैं। वमन युद्लिल्लाहु, और जिसे अल्लाह छोड़ दे अस्ट्रे, भटकता हुआ, फमा लहू मिन हाद, तो नहीं है उसके पास कोई
हदायत देने वाला। इसमें थोड़ा सा एक जो हमें कॉमनली समझते हैं कि जिसे अल्लाह चाहे हदायत दे दे और जिसे भटकता छोड़ दे, अल्लाह की मर्जी। ऐसे यशा डज नॉट मीन लाइक दैट। अल्लाह की मंशा इज अकॉर्डिंग टू व्हाट अल्लाह हैज टोल्ड अस, द रूल्स ऑफ अल्लाह। कि जब आपने किसी चीज की तरफ काम किया, कोई एफर्ट की, कोई चेंजेस लेकर आए अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो फिर आप अल्लाह की मंशा में आपको गाइडेंस मिलेगी। लेकिन अगर आपने वो काम नहीं किए, द प्री रिक्विजिट्स, तो अल्लाह की यशा या मंशा ये होगी कि आपको उस तरह से गाइडेंस नहीं मिलेगी। तो अल्लाह की जो मर्जी है उसको हम ऐसे विम्सिकल नहीं देख सकते कि हमने सब कुछ किया, अल्लाह की मर्जी तो नहीं हुआ। ऐसे नहीं है। अगर नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ जो हमने समझा कि हमने पूरा एहतमाम किया, then we have to go back and check what have we missed out on. So we have to research further and we have to read further कि कोई चीज कमी रह गई है। यही चीजें हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। लेकिन हम उसमें वो एलिमेंट नहीं लेकर आते कि ये क्यों हो गया, ये ऐसे हो गया। आपको रिफ्लेक्ट करना है, आपको पॉन्डर करना है कि ये चीज अगर हुई है तो वी हैव काइंड ऑफ नॉट डन समथिंग राइट, सो वी नीड टू गो बैक एंड करेक्ट इट। सो ये अल्लाह की यशा या मंशा जो है, और जब आप अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक काम करते हैं तो वो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और रिजल्ट्स अगर नहीं मिलते देन यू हैव टू रीचेक योरसेल्फ। इसी सूरा 39 की आयत 27 और 28 देख लें। जी, आयत 27। वलकद दरबना लिन्नासे, और बेशक वी स्ट्राइक फॉर पीपल, फॉर ह्यूमंस, फी हाजल कुरान, इस कुरान के अंदर, मिन कुल्ले मसलन, हर तरह की मिसाल, लाअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो जिक्र कर सकें, उनको एक रिमाइंडर मिल सके, उनको एक याद दहानी हो जाए that when that Allah Ta'ala gives in Quran every kind of similitude. Sorry, just one. It's okay. जी. So ayat number 28 is Quranan Arabiyan. Sorry, Amna. जी Sabina has a question. Her hand is जी raised. जी। अच्छा जी जी बताइए सबीना। Which ayat are we doing in Surah? जी, सूरह 39 आयत 28। ठीक है जी। जी, I'm continuing from 27. 27 we learned that Allah has given in Quran every kind of similitude for people so that they remember, they take admonition. Next ayat 28 is Quran Arabian, Quran in Arabic, Arabi में, गैरा जी इवाजन, जिसमें कोई डिविएशन, कोई क्रुकेडनेस नहीं है, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो तकवा कर सकें, सो दैट दे टेक गार्ड अगेंस्ट द रॉन्ग। सो यहाँ पे कोई इरेगुलरिटी नहीं है कुरान के अंदर। Quran Arabi is a language which is not the spoken. It's not talking about the spoken language of Arab countries. Arabi in Quran is only the language of Quran. So Quran ki Arabi is different. And this is not, you will not find even a regular Arab speaking this language. So Arabi means the detailed language, the language with a lot of depth. तो ये कुरान आपको layers and layers of meanings समझाता है depending on who is reading and who is on what level of understanding you are at. But at all levels, there is going to be no irregularity in the understanding of Quran. बस उसके levels deeper से deeper होते जाएंगे आपके पास। Next आयत देखिए 39 की ही आयत number 41. Same surah, ayat number 41. Inna anzalna alaykal kitaba, बेशक हमने नाजिल की आप पर किताब, लिन्नासे बिलहक, इंसानों के लिए हक के साथ, फमन इह्तदा फलिनफ्सिही,
फिर जो हदायत ले लेता है तो वो अपनी नफ्स के लिए हदायत लेता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुरान को सिर्फ अपने लिए पढ़ते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ते। जिसने पढ़ा है, जिसने गाइडेंस ली है, वो अपनी नफ्स को ही फायदा पहुंचाएगा। वमन दल्ला, और जो अस्ट्रे हो गया, इससे हट गया, फ़इन्नमा युदिल्लु अलैहा, तो फिर उसका भटकना जो है वो उसी के ऊपर है। तो ये हमारा अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत होता है कि अगर एक इंसान ने कुछ सीखा है तो वो समझता है कि वो किसी और के लिए आप फायदा पहुंचा रहे। आप किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते। कुरान पढ़ने का फायदा या कुरान समझने का फायदा ये आपकी पर्सनल एफर्ट है, और जो आप इसमें हदायत लेंगे, गाइडेंस लेंगे, वो आप ही के लिए है। और अगर आप नहीं लेते तो वो भी आप ही के लिए है। सो वी आर, as individuals, we are responsible for what we do. No one else is responsible for us. And we are not responsible for any other soul. वमा अंता अलैहिम बेवकील, और ना ही आप हैं उसके ऊपर वकील, एज डिस्पोजर ऑफ देयर अफेयर्स। सो ये अल्लाह ताला मैसेंजर से बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो इंसान गाइडेंस लेता है वो अपने लिए लेता है, जो नहीं लेता वो भी दैट्स अपॉन हिमसेल्फ, एंड यू आर नॉट टू डिस्पोज ऑफ एनीवन्स अफेयर्स। सो रसूल अल्लाह के बारे में जब हम कहते हैं ना कि वो आके हमें बचाएंगे या हमारा साथ इस तरह से कुछ होगा, तो ऐसी बात नहीं कही गई यहाँ पे। ही इज नॉट डिस्पोजर ऑफ आर अफेयर्स। उन्होंने काम नहीं बनाने आपके, आपने अपने काम ठीक करने हैं, आपके लिए गाइडेंस है। वो सिर्फ मैसेज पहुंचाते हैं आप तक, जो किताब के थ्रू जो उन्होंने दिया है। तो आपको उसी मैसेज को फॉलो करना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, तभी आपके हालात या जो कुछ भी चेंजेस आप, we are seeking a better life and to please our Rabb, that is what's going to happen only with your action. जी, सूरा नंबर 47, आयत नंबर 20 and 21. सूरा नंबर 47. जी, 47 आयत 20. वयकूलुल लज़ीना आमनु, और कहते हैं वो लोग जो ईमान लाते हैं, लौला नुज़िलत सूरा, कि क्यों नहीं सूरत कोई नाजिल होती हम पर। वज़ुकिरा फीहल किताब, सॉरी, फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुम मुहकमतुम, फिर जब नाजिल होती है कोई मुहकम आयात वाली सूरत, मतलब कोई अहकाम वाली कोई सूरत नाजिल होती है उन पर। वज़ुकिरा फीहल किताल, और इसमें जिक्र होता है फाइटिंग का। किताल इज फाइटिंग टू ओवरकम। सो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स होती हैं, हमारी नेगेटिव साइड होती है, सबकी होती है, क्योंकि दैट इज अ नेचुरल वे। हम इंसानों के अंदर हमारी डार्क साइड और एनलाइटेंड साइड दोनों होती है। जब आपके ऊपर कोई ऐसी सूरा अल्लाह ताला भेजे, उसकी अंडरस्टैंडिंग जिसमें आपको कोई हुक्म दिया जाता है विच यू हैव टू फॉलो अगेंस्ट योर रूटीन और योर विशेस, तो फिर इसमें आता है जिक्र किताल का, बिकॉज यू हैव टू फाइट टू ओवरकम योर विशेस एंड यू हैव टू गो अगेंस्ट योर डिजायर्स और योर रूटीन। रअयतल लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन, तो आप देखेंगे उन लोगों को जिनके दिलों में कोई मर्ज है। इसको अल्लाह ताला मर्ज कहते हैं कि अगर आपके दिलों में कोई थोड़ा सा डिविएशन हो फ्रॉम फॉलोइंग द कमांड्स। यंजुरूना इलैका नजरल मखशिय, तो आप वो देखेंगे आपकी तरफ कि जैसे कोई देखता है अल मखशिय अलैहि मिनल मौत, कि जैसे छा गई उसके ऊपर मौत। Meaning, they're very dismal about the fact that they have to change their ways or they have to follow the command. فَأَوْلَى لَهُمْ, but this is more befitting for them. अगर वो उसको फॉलो कर लेते हैं तो वो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि गाइडेंस अल्लाह की आपके लिए तभी आती है जब आप बेहतरी चाह रहे होते हैं अपनी जिंदगी में। उस बेहतरी के लिए हमें कोई चेंजेस लाने होते हैं। Otherwise, we would be comfortable with the status quo. Because we want to improve our lives and because we want to seek guidance, then when the guidance comes to us, which requires us to make some changes, we have to follow that, submit to it. Because we should know
ईमान बिल गैब का मतलब ये है, हमें पता है अल्लाह की तरफ से ये गाइडेंस है तो इसमें हमारे लिए बेहतरी है, ये हमें करनी है ताकि हमारी जो भी हमारे हम चाहते हैं, हमारी खुशी में, हमारी पीस में, हमारी जो सिचुएशन अभी है उसमें बेहतरी आ जाए। और इसमें आपको थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। दैट इज व्हाट किताल इज। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट your status quo, your desires, and your whatever comfort zone is. ताअतु व कौलुम मारूफ, और अगर वो अतात करते, if they would have followed, been obedient, और recognized मारूफ बात करते, they would have said what is right, फ़इज़ा अज़मल अमर, और उसके ऊपर, उस काम के ऊपर फर्मनेस दिखाते, फलौ सदकुल्लाह लकाना खैरन लहुम, that would have been best for them if they had been true to Allah. तो ये बेहतरी होती है आपके लिए अगर आप सिंसेरिटी के साथ, सच्चाई के साथ अल्लाह के अहकाम को फॉलो करें। 243 सूरह बकरा आयत 243। अलम तरा इलल लजीना, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ, खराजू मिन दियारिहिम, जिन्हें निकाला गया उनके घरों से, they abandoned their homes, wahum ulufun hazar al maut, though they were thousands in number for fear of death. So जो लोग अपने घरों से निकल आते हैं, अगेन यहाँ पे किताल के सेंस में आ रहा है, you leave your comfort zone. So you leave that जो आपकी जो कंफर्ट की स्टेट होती है उसको आप छोड़ के अल्लाह के काम, अल्लाह की गाइडेंस पर फॉलो करने के लिए जब आप निकलते हैं, फ़काला लहुमुल्लाहु मूता, फिर जब उनसे कहते हैं अल्लाह डाई, डाई, you face death in a spiritual sense because you want to become alive and enlightened, you have to die a death, and only after spiritual death you become spiritually alive. Summa ahyahum, फिर अल्लाह उनको हयात देते हैं. So that is psychological spiritual death and life that we are talking about. Anytime that you want to improve your situation, तो आपको कुछ चीजों को बंद करना पड़ता है, और उसी के बाद जब आप वो एक स्टेप लेते हैं और वो आपकी एक डेथ हो जाती है, that part of you dies because you have left it, and then Allah gives you more spirit and better understanding and life, better life, which is what you are desiring. इन्ना अल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा फजल करते हैं इंसानों पर, वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन इंसान ज़्यादातर जो है वो शुक्र नहीं करते। इस तरह से अल्लाह की मेहरबानी होती है। हम मौत से डर रहे होते हैं, लेकिन कुछ मौत जो होती है वो हमारे लिए बेहतर होती है, बिकॉज उस मौत के बाद हमें नई जिंदगी मिलती है। This is how the life evolves. So within our lifetime also, we die many deaths which are done to, because हम वो काम कर चुके होते हैं जो जिसका पर्पस या हमारी जिंदगी में होता है। In order to move on in life, we have to let go of certain things. So वो चीजें हमें छोड़नी होती है, they have to die, wither away, and then we move and we evolve with new spirits and new life and new enlightenment. जी, दिस इज, इसको आप देख लें 216 में भी, सूरह बकरा की आयत 216, 216, कुतिबा अलैकुमुल कितालु, prescribed upon you is al-qital. Again, the qital is not the word to kill. That is like an extreme form जब कत्ल कोई करते तो वो physical sense में, but al-qital is fighting to overcome, and we're talking about ourselves. So आपके ऊपर it is prescribed that you fight within yourself. You fight to overcome your wrong side.
वहुवा कुरहुल लकुम, और आप उसको पसंद नहीं करते. That is, you don't like it. Obviously, we all want to just be the way we are. We don't want to discipline ourselves. We don't want to regulate ourselves. हमारे अंदर एक एक वाइल्ड स्ट्रीक जो होती है, हम चाहते हैं कि बस उसी तरह चलती रहे अपनी मर्जी से. but then we know that that is not right for us. उससे हमें ही नुकसान होता है आगे जाके. वअसा अन तकरहू शैअन, और शायद आप किसी चीज को नापसंद करते हो. यू डिसलाइक समथिंग. वहुवा खैरुल लकुम, एंड इट इज बेटर फॉर यू. वअसा अन तुहिब्बु शैअन, और शायद कि आप पसंद करें किसी चीज को. वहुवा शर्रुल लकुम, और वो आपके लिए बुरी हो. वल्लाहु यालमु, अल्लाह को इसका इल्म है. व अंतुम ला तालमू, और आपको उसका इल्म नहीं है. So again, we don't know what is good for us and what is not good for us. And sometimes something that we don't like is actually good for us. So we have to overcome our feelings of not liking that particular thing or act, and we have to do it. We have to go out of our way or overcome our feelings and do that act. And sometimes we like something very much, but it is not good for us. तो ये चीजें हम अपने पैटर्न्स जो लेकर चल रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, उन्हें हमें ब्रेक करना होता है तभी. वरना फिर जो अगर हम पैटर्न्स से कंटिन्यू करेंगे तो वही चीजें हमारी जिंदगी में बार बार रिपीट होंगी जो उन पैटर्न्स की वजह से आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दोज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. So basically we have to check ourselves and see where we need to end something and fight to overcome it, and where we need to, and inshallah then we'll receive the guidance to start something afresh. 13 surah ayat number 18 देख लीजिए. surah number 13 1-3, ayat number 18 1-8. लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, उन लोगों के लिए जो जवाब देते हैं उनके रब को, उनके लिए देयर आर हुस्ना, अच्छी चीजें हैं. Those who respond to their Lord. वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू, और वो लोग जो नहीं रिस्पॉन्ड करते उनको, अल्लाह को. लव अन्ना लहुम मा फिल अर्दे जमीयन, वो चाहे जो कुछ भी है जमीन में सारा इकट्ठा भी. व मिसलाहू, और उसके जितना सारा सामान. माआहू लफ्तदौ बिही, दे दे उसके साथ एज कॉम्पनसेशन. उलाइका लहुम सूउल हिसाब, तो उनसे ये नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा as compensation, even if they give everything that they have on the earth and similar to that additional, it will not be accepted from them. और उनका बहुत बुरा हिसाब होगा उनके लिए. वमा वमा वाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम होगा. व बिअसल मिहाद, और बहुत बुरा ये रेस्टिंग प्लेस है. Jahannam is again, a state of being in fire. Fire is when we are being grilled. जब बेचैनी होती है, बहुत सख्त तकलीफ होती है. That is the state. The stress होता है आपके ऊपर, परेशानी होती है आपके ऊपर. That is what you feel in a state of Jahannam and fire. तो जब आप, अल्लाह, हमने पिछली भी एक आयत देखी थी सूरह बकरा की 186 में, कि जब अल्लाह कहते हैं कि जब मुझे पुकारने वाला पुकारता है मैं उसको जवाब देता हूँ. तो चाहिए कि पुकारने वाला भी मेरी बात को सुने when I respond to him. So यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, जो अल्लाह आपको गाइडेंस भेज रहे हैं उसको ये काम करना है, तो फिर that will be good for you. If not, then you will create a situation of pressure and stress and discomfort for yourself. अब रिजेंबलिंग आयतों को देख लेते हैं थोड़ा सा. Sorry, one more ayat I think I can read in this regard. Ayat number 22 देख लीजिए.
Surah 13, Surah 1-3, ayat number 20. Means to stay firm, uh, to persevere, seeking the face of their Rabb. व अकामुस सलाता और कायम करते हैं सलात को, establish regular communication to stay God consciousness को रखने के लिए, to stay aware of Allah Ta'ala. व अनफकु मिम्मा रज़क़नाहुम, and again खर्च करते हैं उसमें से जो उनको रिस्क दिया जाता है, सिर्रा व अलानिया, छुप के भी और पब्लिकली भी, बता के भी और बगैर बताए भी, डजंट मैटर. व यदरऊना बिल हसनातिस सय्यिआ, और वो दूर करते हैं जो भी बुराई उनके रास्ते में आती है उसको अच्छी चीज के साथ. So you respond to any wrong activity that comes in your way, उसको अच्छे तरीके से आप रिवर्ट करते हैं. उलाइका लहुम उक़बद्दार, ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत का दायरा है. The end of the life cycle is for them. They will be in a good place when the end comes. जी, अब रिजेंबलिंग आयतों को देख लेते हैं. ये तो मोहकम आयात हैं और इनको हमने किस तरह से समझना है, किस तरह से पढ़ना है. These are the governing आयात, the governance of our life. So that is what they are related to, the commandments. We have to read them from Quran, we have to understand them, take the best meaning from them, and then whatever to our capacity, to the best of our capacity, we have to follow them, implement them in our lives. जो समझ में आ जाए उसमें से, और उसको अगर आप करते जाएंगे तो आपकी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट्स आती जाएंगी. और अगर आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और अगर आपको समझ भी आ रही है, आपके पास एबिलिटी भी है, और आप उसको साइड पे रख देते हैं, तो फिर आपको भी फिर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव इन योर लाइफ. So Surah number 12, Surah Yusuf, ayat number 3. So part of the Quran is about muhkim governing ayat, and part of the Quran is resembling ayat, जिनसे हमें relate करना है अपनी situations को, the stories that we read. So Surah Yusuf, Surah number 12, ayat number 3. Nahnu nakussu alayka, हम आपसे, आप relate करते हैं आपके ऊपर. So these are relatable stories. Ahsanal kasasi, the best of relations. Kasas means to relate to something. Bima awhayna ilayka hazal Quran, उसमें से जो हम वही करते हैं आपकी तरफ कुरान में से. So Allah says, we relate unto you the most beautiful of these stories, in that we reveal to you this portion of the Quran. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, और बेशक इससे पहले आप गफलत में थे. You were ignorant, you didn't know, you were unaware, you were unconscious of these stories. So Allah opens up these stories to us when we are facing a situation similar to these stories. Surah Yusuf की ही ayat number 111 देख लें. 111. It's the last ayat of Surah Yusuf. Surah 12, ayat number 111. लक़द काना फी कसासिहिम, बेशक है इन किस्सों में, इन कसस में, इब्रतुन लिउलिल अलबाब, इब्रत है इंस्ट्रक्शन for people of understanding. मा काना हदीसन युफ्तरा, ये events invented नहीं है. These are not like ऐसी बातें inventions नहीं है कि ऐसे ही हो गई. ये actual events हैं जो कि होते हैं हमारी जिंदगी में. That is why they are here for our guidance. वलाकिन तस्दीका, they confirm अल्लज़ी बैना यदैहि, वो बात जो आपके हाथों के दरमियान में है.
हाथों के दरमियान में actually means it's a metaphor. It actually means whatever is the situation at hand. So they confirm whatever the situation at hand is faced by you. वतफ़सीला कुल्ल शैइन, और हर चीज की तफसील है इसमें, वहुदां and guidance, व रहमतन लिक़ौमी युमिनून, और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। तो इस आयत का मतलब ये है कि ये जो कसस हैं, ये जो स्टोरीज हैं, दे आर टू बी रिलेटेड विद, we relate to them. There is instruction for people of understanding in it for us. And these are not invented stories. These are not invented situations. Because usually क्या होता है, हम जब किसी को बात बताते हैं ना, what if ऐसे ऐसे हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसी बातें एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं कि इंसान वहां गया, अल्लाह ने उसको ये कहा, अल्लाह ने उसको यूं कहा, और फिर वो ऐसे हुआ, just to get the point across. These are not those kind of stories. और ऐसे हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, just to make others understand. आप सीधी बात कुरान से कीजिए, ऐसी बात ना करें या ऐसी स्टोरी ना बनाएं या अल्लाह के बारे में ऐसी बात ना कहें जो अल्लाह ने कुरान में नहीं की है। ये भी हम आयत देखेंगे that we are told to not talk or refer to anything as being said by Allah if it has not been said. So if we can only quote an ayat, then we say it straight from the Quran. Otherwise, we don't just make assumptions and make stories कि ऐसे हुआ या उस तरह से हुआ, to just to make a put a point across. लेकिन ये जो events और situations कुरान के अंदर बताई गई हैं, ये हदीसें जो हैं, these are not invented. They actually confirm what is the situation that you are faced with, the situation at hand with you, and then they give explanation and guidance in every way. जी, सूरा 45 आयत नंबर 6 देख लें। सूरा 45 आयत नंबर 6। ये हमने पहले भी देखी थी, but here again it is related, so I'm going to repeat it. Because हदीस का जो हम मतलब लेते हैं कि हदीस जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात की है वो हदीस है, तो वो कुरान क्या कहते हैं इसके बारे में, we can see that. सूरा 45 आयत 6, हदीस का लफ्ज हादसा से निकलता है। हादसा का मतलब happening, a situation, an event that is happening. तिलका आयातुल्लाह, ये आयतें हैं अल्लाह की। सूरा 45 आयत 6, ये आयतें हैं अल्लाह की। नतलूहा अलैका बिलहक, जो हम तिलावत करते हैं आपके ऊपर हक के साथ। फबिअय्यि हदीसिन बादल्लाहि आयातिही, फिर कौन सी हदीस में अल्लाह के बाद व आयातिही युमिनून, और उसकी आयतों के बाद आप ईमान लाएंगे। अल्लाह की आयतों के बाद आप कौन सी हदीस में ईमान लाएंगे। दिस इज व्हाट इज सेड हियर, कि ये आयतें हैं जो हम तिलावत करते हैं आपके ऊपर हक के साथ, और कौन सी हदीस में आप ईमान लाएंगे इसके बाद कि अल्लाह की आयतें आप तक पहुंचा दी गई हैं। So this is the hadith that we were referring to, the events and situations in the Quran that Allah has given to us for our guidance. Surah 11, ayat 120. Surah 11, ayat 120. वकुल्लुन नकुस्सु अलैका, और वो सब कुछ जो हम कुस्सु रिलेट करते हैं आपके साथ, मिन अंबाइर रुसुले, from the information of the messengers, from the stories of the messengers, ma tusabbitu bihi fuआदका, इसके साथ हम सब्बित इज फर्मनेस देते हैं आपके दिल को। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन या स्टोरीज रसूलों की पहुंचाई जाती हैं, इनके साथ हमारे दिलों में फर्मनेस आती है, स्ट्रेंथनिंग आती है। वजा आका फी हाज़िहिल हक़्क़ु,
और ये आ गया है आपके पास अब हक में से, व मौइज़तुन, और वाज है, इंस्ट्रक्शन है, व जिक्रा लिल मुमिनीन, एंड इट इज अ रिमेम्बरेंस फॉर दोज हु बिलीव. So these stories are related to you, are given to you so that they bring firmness and strength to your heart. अब दिल मजबूत करने के लिए ये बताई जाती हैं स्टोरीज, ताकि हमारे पास भी अगर सिचुएशन आए तो हमें एक उम्मीद, एक ढारस बंधी रहे कि दिस इज व्हाट वी रेड इन कुरान एंड वी कैन गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम इट. सूरा 64 आयत 11. सूरा 64 आयत नंबर 11. मा असाबा मिन मुसीबतिन, और नहीं पड़ती कोई मुसीबत में से, कोई पड़ने वाली चीज. असाबा मुसीबा एक ही रूट वर्ड से है, मतलब इसका पड़ने वाली चीज. एनीथिंग दैट कम्स अक्रॉस योर वे, इल्ला बिइज़्निल्लाह, सिवाय अल्लाह की इजाजत के. वमई युमिन बिल्लाह, और फिर जो ईमान लाए अल्लाह पर, मीनिंग यू हैव फुल फेथ कि हर चीज अल्लाह की तरफ से ही आती है. यहदी कल्बहु, तो अल्लाह उसके दिल को गाइड करते हैं. सो वी रिसीव द गाइडेंस इन आवर कल्ब, आवर हार्ट. सो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है हमारी जो रिसीव करती है गाइडेंस को, एंड वी नो इन आवर हार्ट दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम अल्लाह. ये हमारा कनेक्शन होता है अल्लाह के साथ. वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह को हर शय का इल्म है. Surah 31, ayat number 6 देख लें. This will be the last ayat. Surah 31, ayat number 6. वमिनन नास से, और इंसानों में से है, तो ये हमारी बात ही हो रही है. तो अगेन वी हैव टू वॉच आउट कि हम ये काम तो नहीं कर रहे हैं, और अगर हम करें तो हमें ये सारी अल्लाह की तरफ से ना एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव को देखना होता है. सिर्फ वही चीजें नहीं देखनी होती जो कि ईमान, हमारी ईमान वाली साइड कर रही होती है, हमें वो भी देखनी होती है. हमारी काफिर वाली साइड तो कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिसको हमें इन चेक रखना है. वमिनन नास से, इंसानों में से है, मई यश्तरी लहवल हदीस से, जो कि परचेज करते हैं लहवल हदीस, डिस्ट्रैक्टिंग सिचुएशंस या डिस्ट्रैक्टिंग हदीस को वो खरीद लेते हैं. लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म, ताकि अल्लाह के रास्ते से भटका दें दूसरों को विदाउट नोइंग. ये अभी जो हमने पीछे बात की थी कि बगैर किसी नॉलेज के आपने बातें नहीं, डोंट मेक अप स्टोरी जस्ट बिकॉज दिस इज व्हाट यू अंडरस्टूड. उसी को एग्जैक्ट कुरान से कोट कीजिए, या नहीं रेफरेंस पता तो बता दीजिए कि कुरान में कहीं लिखा है तो उसको आप ढूंढ के निकाल लें. लेकिन अपने से कोई स्टोरी बना के कि ऐसे हुआ होगा या एज्यूमिंग, वो मत कीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आप भटका देंगे लोगों को विदाउट नोइंग. वयत्तखिज़हा हुज़ुआ, और डोंट टेक देम इन जेस्ट ऑल्सो, उनको डोंट टेक देम लाइटली, मजाक नहीं बनाइए उनका. उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, तो इन लोगों के लिए बहुत ग्रीविंग पनिशमेंट होगी जो ऐसा काम करेंगे. So don't take these stories lightly, and don't make up stories based on these stories, assuming that this is probably what was said, unless you are very, very sure of what is written here. And best to quote from Quran, exact ayat. हर इंसान जो पढ़ता है वो अपने मुताबिक उसको समझ में आती है. So और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर उसकी आपको दुख पहुंचेगा उसकी वजह से. So muhin is grief. So you don't want to take that grief upon yourself. So ये हमने थोड़ी सी चीजों का we have to be aware. दुआ देख लेते हैं जी, 2 दुआएं इस रेफरेंस से जो आज हमने आयतें देखी हैं. सूरा 3 आयत नंबर 8. सूरा 3 आयत नंबर 8. रब्बाना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, नहीं हमारे दिलों को आप तुज़िग़ इज़ डिविएट कर दीजिएगा, बादा इज़ हदैताना, इसके बाद के हमें गाइडेंस आ गई,
वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अता कर दीजिए अपनी तरफ से रहमत में से। इन्ना का अंतल वहाब, बेशक आप वहाब हैं, यू आर द ग्रांटर। सो आप यू ग्रांट बाउंटीज विदाउट मेजर। तो आप हमारे दिलों को टेढ़ा मत होने दीजिएगा। अगेन, जिस तरह हमने लास्ट टाइम सीखा था, व्हेन वी वांट टू सर्व अल्लाह या कनाबुदो व इया का नस्ताइन, अल्लाह से ही हमें असिस्टेंस लेनी होती है। तो हमें जब अल्लाह से असिस्टेंस लेनी है तो हमें दुआएं मांगनी है अल्लाह ताला से, किसी भी सिचुएशन में जो हमें लग रहा हो कि हमें हेल्प चाहिए अल्लाह की। तो यहाँ हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमारे दिलों को टेढ़ा मत होने दीजिएगा। इसके बाद कि आपने हमें हदायत दे दी और हम पर अपनी तरफ से रहमत नाजिल फरमाइए। नेक्स्ट आप देख लीजिए सूरा 20 आयत नंबर 114। जी, सूरा 20 आयत नंबर 114। फ़तआल अल्लाहुल मालिकुल हक, फिर आला है अल्लाह, अल मालिक, ही इज द मास्टर, ही इज अबव ऑल, ही इज द मास्टर एंड ही इज अल हक, द ट्रूथ। वला ताजल बिल कुरान, और नहीं आप जल्दबाजी करें कुरान के साथ, मिन कबले, इससे पहले, अन युक्दा इलैका वह्युहु, इससे पहले कि पूरी हो जाए आप पर इसकी वही। सो यू वेट till you are inspired to act, till the understanding is completed on you. तो आप तेजी मत करें। वकुल, और कह दें, रब्बे जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मुझे ज्यादा दे दीजिए इल्म में से, मेरे इल्म में इजाफा कर दें, एडवांस मी इन माय नॉलेज। तो ये दो दुआएं हैं जो कि आप अभी हमने जितना सीखा है उसके हवाले से भी, अदरवाइज ऑल्सो इन एनी सिचुएशन आप इनको मेमोराइज कर लीजिए, फिर नमाज के एंड में आप इनको पढ़ सकते हैं। एट एनी टाइम दैट यू फील द नीड टू रिहर्स देम, रिपीट देम, वो भी आप किसी भी वक्त दुआ है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, so we'll end our session for today at this point. Thank you. Any questions you have, please ask them.